It's indeed a great pleasure to have all of you today on the World Health Day. And particularly when we talk about during the COVID or post COVID or coronavirus, but still, somebody says muted wire, the muted kind of a virus, or maybe people are talking about the second wave of virus, or whatever it is. We all got to be taking necessary precautions, whatever government is telling us. हम सब लोगों को वो सब हिदायतों का पालन करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और हमारे साथ आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर जुड़ रहे हैं बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अमनदीप अग्रवाल जी। ही इज द कार्डियक emergencies course, Apollo Hospital, New Delhi, when we talk about, and he is going to share with us relevance of World Health Day, particularly during amid this COVID crisis what we have got. Today is 816th webinar. We started our series during pandemic right from 25th of March, when the Honorable Prime Minister of India last year in 2020, he declared complete lockdown. We saved ourselves very well. भारत ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आपसे निवेदन है अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए और केसेस को बढ़ने मत दीजिए। आज सभी का वर्ल्ड हेल्थ डे पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन 7 अप्रैल को। और इस साल का जो थीम है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे चेंबर की तरफ से, आईसीएसआई की तरफ से, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री, which is basically a link between Indian and at the same time non-resident Indians, and of course Indian corporate houses and all the other officials from various ministries, government, PSUs, and besides that leading private sector and public sector together. Now, this is the complete canvas of the chamber. We have got about 28 webinars per week, which we are organizing, but today is a special webinar because today is a World Health Day, and we have got very respectable. And today at 8 p.m., you have got next webinar that's on the vocational teachers training. Do join us at 8 p.m. also tonight. We will have Atmanirbhar Bharat. So, ladies and gentlemen, whatsoever human mind can conceive and believe, it can achieve. Today we are privileged. We have got Dr. Amandeep Agrawal ji. He is having 27 years experience. He also a family physician at Professor R.D. Agrawal Memorial Hospital, Sangrur, running an affordable private hospital with a charitable zeal. He is honored by the state government on Republic Day for Community Services, recipient of the Doctor's Image Building Award from Health Minister, social activists and bloggers, have been providing free medical consultation on all Sundays since the inception of the hospital. ये है समाज में हमें ये महसूस करना होगा हम कौन हैं, हम संसार में क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जीवन का कुछ मूल्य, कुछ मतलब, कुछ पर्पस होना चाहिए। He have been spreading awareness about COVID since January 2020 through interactive sessions of doctors, community and article in different newspapers and through radio and television shows. Ladies and gentlemen, we all are privileged this afternoon to have Dr. Amandeep Agrawal ji. We extend him a very warm welcome. Hearty welcome, Dr. Saab. Thank you, Pleasure sir. to Thank have you you so with much. us. Thank you for sparing your most valuable time and to be with us. अब क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सेकेंड वेव आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि ये हर्ड कम्युनिटी एक डेवलप हो जाएगी, कुछ और चीजें चल रही हैं, और भारत में लोगों को और भी कई तरीके का तनाव, स्ट्रेस, कार्डियक की बहुत सारी चीजें हैं। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर वी वुड लाइक दैट यू शुड काइंडली गिव अस your most valuable advice, valuable inputs, so that the system, society, and the humanity and the world can become a better place for all of us. With these words, Dr. Amandeep Agrawal ji. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Sharma and ICSI. आप सबका आभारी हूं कि आपने इतनी अच्छी ऑडियंस के सामने इतने अच्छे आज के भारत का आज और भारत का आने वाला कल
उसके सामने मुझे आज आने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ। 7 अप्रैल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आज के दिन स्थापना हुई थी, आज समय है कि आज हम इसकी रेलेवेंस की बात करें कि हम 7 अप्रैल हर वर्ष मनाते हैं, इसकी आज के संदर्भ में क्या रेलेवेंस है। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे amidst COVID-19 crisis? So this is the topic on which we will speak today. वर्ल्ड हेल्थ डे, इट इज अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। जैसे डॉक्टर शर्मा ने अभी बताया, इस साल हमारा जो थीम है दैट इज टू क्रिएट अ हेल्थियर एंड अ बेटर इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 7 एवरी डे। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, उस दिन को याद करते हुए ये हर साल मनाया जाता है। लास्ट ईयर WHO कुछ क्राइसिस में भी था, इसको एक्विजिशंस भी लगी थी, इसके ऊपर दोष लगाया गया था कि जो इस एक इतना बड़ा एपिडेमिक आया है उसकी डेक्लेरेशन में WHO ने काफी देर की और उसमें चाइनीज गॉगल्स पहने, उसने चाइना को एक तरह से डिफेंड किया। पर आज हम उसकी बातें नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि आज के संदर्भ में जब हम सेकेंड वेव या कहीं जगह पे थर्ड वेव, फोर्थ वेव की बात कर रहे हैं कोविड की, और लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है, उस संदर्भ में आज जब कहा जाता है कि सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है, जैसे बसों में हम लोग पढ़ते हैं लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, आज हम अपनी सेहत के खुद जिम्मेवार हो गए। उस समय में हमने क्या क्या करना है, इस चीज की आज के दिन में हमारे लिए क्या रेलेवेंस है और यूथ के लिए हम क्या आज का मैसेज दे सकते हैं, आज हम ये बातें करेंगे। क्या समझेंगे हम कि हमने जो WHO के बारे में मैं बात कर रहा था कि WHO ने हर साल एक नया थीम दिया, एक नया स्लोगन दिया। आज हम समझेंगे कि हमने क्या इतने सालों में खोया, क्या पाया, और इसकी रेलेवेंस जो है तभी हम इसकी समझ पाएंगे। इंडिया 74 इयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब मैं एक मेडिकल कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ था तब मुझे बताया गया था, पढ़ाया गया था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, दैट वाज द स्लोगन ऑफ WHO इन दैट ईयर। दे मेंट टू से, उनका ये कहना था कि बाय साल 2000 तक हर 5000 पॉपुलेशन के लिए एक MBBS डॉक्टर हम हिंदुस्तान में प्रोवाइड कर देंगे। पर वो तो बहुत दूर की बात है। कोविड ने हमें जो चीजें हमारे अंदर की जो कमियां थी उसको उजागर किया, उससे हमने बहुत कुछ लेसन लिया, उससे हमने बहुत कुछ आगे गेन किया, लेकिन इसमें जो खामियां हमारी जो सामने आई उभर के, वो थी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की कमियां, ICU बेड्स की कमियां। इंडिया के अंदर पहले बात की गई कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और उसकी कमी भी हमारे सामने आई। हमारे डॉक्टर्स को जो उस क्राइसिस में काम कर रहे थे उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी नहीं थी, उसके बिना हम डॉक्टर्स को काम करना पड़ा। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। उस समय इंडिया ने एक जंग जैसे जंग लड़ते हुए एकदम से हम फैसले लेते हैं, क्विक डिसीजंस लेते हैं और एकदम से उसको क्रियान्वित करते हैं, उस तरह से वो अपनी कमियों को समझा और बहुत तेजी से चीजें की, बहुत प्रिकॉशनरी स्टेप्स अच्छे लिए। अदरवाइज जो केसेस थे वो इतनी तेजी से हमारे मल्टीप्लाई होने थे कि हमारे इंडिया में सिचुएशन संभलनी मुश्किल हो जाती। सोशल डिस्टेंसिंग का हम सबने मिलजुल के पालन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय पे लॉकडाउन लगाया और हॉस्पिटल्स में नेसेसरी इंतजाम किए, जिसके कारण हम इस मॉर्टेलिटी को कम कर सके। मैं बात कर रहा था 1987 की, जिस समय मैंने एडमिशन हुई मेरी मेडिकल कॉलेज में, तो मैं जैसे बता रहा था कि WHO का उस समय थीम था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080। उसके अंदर कैसे करना था, दैट वाज कि माल न्यूट्रिशन को हमें एलिमिनेट करना था, इग्नोरेंस को हमें एलिमिनेट करना था, इग्नोरेंस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर का हमने अंत करना था। वी वर टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। अनहाइजेनिक हाउसिंग का हमें समापन करके एक अच्छी हाउसिंग, अच्छा
घर सभी के लिए इंश्योर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नहीं हुआ। अब हम एक बेहतर भारत का निर्माण हम सब लोग मिलके कर सकते हैं, और समय है कि हम सजग हो जाएं। हम अभी अपनी कमियां जो हमने कोविड में, हमने कुछ बहुत अच्छे लेसन्स भी हमें मिले हैं, उनसे हम सीखें और उनको आने वाले समय में हमेशा के लिए अपनाएं। जो इंडिया के अंदर कुछ चीजें हैं जो मेडिकल्स को रोकती हैं। फॉर एग्जांपल, मेडिकल एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली। जरूरत है मेडिकल स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है इसको थोड़ा किफायती बनाने की, ताकि जो आम घरों के बच्चे हैं, जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, जो हमारे गांव से आने वाले बच्चे हैं, वो भी डॉक्टर्स बन सकें, जिनके अंदर अपने गांव में सेवा करने की एक जज्बा हो। रूरल इंडिया के अंदर हेल्थ तभी इंप्रूव होगी, अदरवाइज नहीं इंप्रूव होगी। मैं बात कर रहा था कि हमने कोविड के अंदर बहुत सारी चीजें नई सीखी हैं, और इंडिया ने उस समय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही बोला था कि भारत इसमें एक आत्मनिर्भर भारत का एक आप नया पहलू देखेंगे और विश्व देखेगा। आज विश्व देख रहा है कि इंडिया हैज एमर्ज्ड एज अ वैक्सीनेशन लीडर इन द वर्ल्ड। हम अपने ही सिर्फ देशवासियों को वैक्सीन नहीं लगा रहे, बल्कि दूसरे देशों की मांगे भी इंडिया पूरी कर रहा है। लास्ट ईयर हमने मेडिसिन विभिन्न जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी हमसे मेडिसिन लेनी पड़ी थी। इससे पहले कि हम टॉपिक से थोड़ा भटक जाएं, हम थोड़ी सी बात करेंगे कोविड की, क्योंकि आज के संदर्भ में कोविड की बात किए बिना आज का टॉपिक जो है उसके प्रति मैं पूरी ईमानदारी से जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। देयर इज वन थिंग, हम सबको कोविड के बारे में, कोविड के फैलाव के बारे में एक चीज समझने की जरूरत है। वो क्या है कि वायरस ड्रॉपलेट्स से फैलता है। जब एक बीमार व्यक्ति छींकता है, खांसता है, बोलता है, तो अगर उस समय उसने मास्क नहीं पहना और उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसने भी मास्क नहीं पहना, तो उसके मुंह से, बीमार व्यक्ति के मुंह से जो ड्रॉपलेट्स गिरेंगे वो सामने वाले व्यक्ति के, उसके पास में बैठे व्यक्ति के मुंह में, नाक में, आंखों में जा सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी फैलती है। कोविड के बारे में आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि बहुत इगोइस्ट टाइप वायरस है, जो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ हमारे बुलाने से आएगा। तो इसको इनवाइट हम लोग खुद करते हैं जब कभी हमारी सावधानी हटती है। अगर हम किसी को भी देखते हैं जो खांस रहा है, जो छींक रहा है, तो हम क्या करें? नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम अपना मुंह थोड़ा सा ढक लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हमने जो आजकल हमने करना है वो ये है कि हमने ऐसे व्यक्ति से 2 मीटर का फासला बना के रखना है, ताकि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हमारे तक ना पहुंचे। उनको एक मास्क या एक हैंकी देना है ताकि वो दूसरों को बचाव कर सके। एंड इन जनरल, गुड आइडिया टू अवॉइड क्राउड। हमें भीड़ भाड़ वाले एरिया से, किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, जिनका हमें ये नहीं मालूम कि उनमें से बीमार कौन है, स्वस्थ कौन है, वहां जाने से बचना है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर वायरस होगा, वो दिखने में हमें बिल्कुल ठीक ठाक लगेंगे, उनमें कोई सिम्टम नहीं होगा, पर वो वायरस दूसरों को दे सकते हैं। उनको हम कैरियर कैसे कहते हैं। नॉर्मली छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर ये बीमारी होती है, लेकिन लक्षण कम आते हैं, पर बच्चों के थ्रू ये बीमारी बहुत फैलती है। तो बहुत जरूरी है कि हम क्राउड से, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें। अगर कोई शादी, ब्याह, फंक्शन या कोई रिलीजियस प्लेस में जाने की बात आती है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर जो बीमार व्यक्ति है उसका सलाइवा, उसका छींका हुआ थूक, उसकी खांसी के जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो हाथों पे लगेंगे, उसके दरवाजे की नॉब्स पे लगेंगे, पेन पे लगेंगे, डिजिटल डिवाइसेस पे लगेंगे, हमारे मोबाइल फोन पे लगेंगे, लैपटॉप पे लगेंगे, स्टेयर केस पे लगेंगे, उसके थ्रू भी ये बीमारी फैल सकती है। तो बहुत जरूरी है
कि हम हाइजीन का ध्यान रखें। हम सिर्फ खुद को साफ रखना है वो तो रखना ही है, साथ के साथ हमारे घर की जो चीजें जिनको बार बार हम लोग हाथ लगाते हैं, हमारे ऑफिस की चीजें, हमारे जो ऊपर नीचे जाने वाला स्टेयर केस है, लिफ्ट वगैरह के बटन, इन सबको भी प्रिकॉशन के साथ टच करें। हो सके तो हम सैनिटाइज करें इनको टच करने के बाद, वरना इन पे भी हम बार बार कोई डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को कभी भी टच करते हैं तो याद रखिए कि आपने अपनी आंखें नहीं मसलनी है, आपने अपना नाक नहीं साफ करना है, आपने तुरंत अपने हाथों को अच्छे से साबुन से मल मल कर धोना है, या अगर साबुन से उस समय धोना पॉसिबल नहीं है तो उस समय आपने सैनिटाइजर से अच्छे से अपने आप को डिसइंफेक्ट करना है, तभी आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा पाएंगे। वायरस जो है एक सरफेस पर, एक सतह पर 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकता। 2 दिन तक अगर किसी सतह पर वायरस पड़ा है जहां पे हमने कोई चीज बाहर से लाके रखी है, या कोई बाहर से व्यक्ति आकर बैठा है जिसको ये संक्रमण था, तो उसको हमें तरीका ये है कि उस सरफेस को हमने डिसइंफेक्ट करना है, चाहे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, चाहे किसी और तरह के अच्छे डिसइंफेक्टेंट से, तभी हम उसके ऊपर हाथ लगा सकते हैं या अपना खुद से अच्छे से बैठ सकते हैं। हमें कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है उसको कंटेन करने के जो कॉमन तरीके हैं वो यही है कि हमने अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है, सबसे अच्छा यही है। दूसरा, हम अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं उनसे अपने हाथ धो सकते हैं। अपने नाक को, मुंह को टिश्यू से कवर करना है, जब भी हमें छींक आती है तो ऐसे कवर करके हम अपने आसपास को बचा सकते हैं, सोसाइटी के प्रति जो हमारा फर्ज है उसका निर्वहन कर सकते हैं। किसी भी हमारे आसपास वाले को, हमारे पड़ोसी को, हमारे फैमिली मेंबर को अगर फ्लू या कोल्ड जैसे सिम्टम्स आते हैं तो उस समय हमें इमोशनल होके उसके पास नहीं जाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने साथी की, अपने फैमिली मेंबर की सेवा तभी कर सकते हैं अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे। अगर उसी समय पे हम खुद बीमार हो गए तो फिर तो 2 बंदे, एक की जगह 2 बंदे बीमार हो गए, देयर इज नो पॉइंट। तो हमने उससे एक डिस्टेंस बना के रखना है, उसके पास जाए बिना उसकी जो सारी जरूरतें हैं उनका ध्यान रखना है। हमने जो खाना है अच्छे से पौष्टिक खाना खाना है और उसे अच्छे से कुक करके खाना है। जो अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट विद पोल्ट्री है उसे अवॉइड करना है, अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट विद लाइव, वाइल्ड और फार्म एनिमल्स अवॉइड करना है। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक अलग बात है कि हमने कोविड सेफ्टी हॉस्पिटल जो मेजर्स हैं वो पूरी तरह से अडॉप्ट करने हैं, अपने खुद की सुरक्षा के लिए भी, हमारे स्टाफ की सुरक्षा के लिए भी। और यहाँ तक कि जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं, एक पेशेंट इन्फेक्टेड आया, अगर उससे आपके बाकी के दिन में आने वाले सारे पेशेंट्स को अगर आप इन्फेक्शन बांट रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू द सोसाइटी। हमें सोसाइटी को बचाना है, उसके लिए जरूरी है कि हम सारे डॉक्टर्स सोसाइटी के प्रति अपना फर्ज समझें और ये सारी प्रिकॉशंस को हम ध्यान से इम्प्लीमेंट करें। और मुझे खुशी है कि मेरे कुलीग्स इन सारी प्रिकॉशंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। बात करें स्कूल्स की, जो आजकल स्कूल्स के ऊपर सबसे पहली गाज गिरती है जब भी लॉकडाउन होता है, तो स्कूल्स के अंदर अगर स्कूल्स चलते हैं, अगर ऑफलाइन स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलती हैं तो उसके अंदर प्रिकॉशंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें 6 फीट का डिस्टेंस 2 बच्चों के बीच में बना के रखना है, ताकि एक बच्चा अगर इन्फेक्टेड है, चाहे वो सिम्टोमेटिक है चाहे एसिम्टोमेटिक है, उसकी इन्फेक्शन दूसरे के पास ना पहुंचे। ये खेलते समय भी, क्लासरूम में भी, बस में भी ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, नहीं तो इन चीजों से इन्फेक्शन बच्चों के अंदर फैलेगी, बच्चों से घर में आएगी, घर में सोसाइटी में फैलेगी। क्लास के हमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे कि अगर कोई भी बच्चा बीमार है तो उसके अंदर लाल फीताशाही छोड़ के कि हम बच्चे को बोलें जी मेडिकल लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसको हम छोड़ दें। अगर बच्चा सिक है तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट्स या स्टूडेंट उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। वो स्कूल में जब आता है, कोई भी बच्चे जब आते हैं तो 6 फीट का डिस्टेंस तो रखेंगे ही, और गेट पे उनकी
प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग हो, प्रॉपर गेट के पास और जगह जगह पे, वॉशरूम्स में और भी जगह पे हैंड वॉशिंग का प्रॉपर बंदोबस्त हो, और सैनिटाइजर को लिबरली देना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे ये मैसेज लेके स्कूल में खुद भी ठीक रहे और घर में ये मैसेज लेके सोसाइटी को, अपने घरों में जाके द मैसेज विल रीच डीप इनटू द सोसाइटी के वो घरों में भी हमने यही प्रिकॉशन रखनी है। अगर हम किसी को भी खांसी है, जुकाम है, सांस फूल रहा है, ब्रेथलेसनेस है, बॉडी एक्स है, ठंड लग रही है, लो ग्रेड फीवर है, लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, लॉस ऑफ स्मेल है, ये सिम्टम्स लेके हम समझ लें कि हम सस्पेक्टेड की कैटेगरी में आ गए। उस कैटेगरी में अगर हम लोग आ गए तो हम अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें। ये सिम्टम अगर मम्मी में है, अगर डैडी में है, या बच्चे में है, या किसी भी सिबलिंग में है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उस हालत में हम अपने बच्चे को स्कूल में ना भेजें। जब हम किसी से भी मिले तो हम हाथ ना मिलाएं। जो पहले के जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान के जो तरीके हैं, अभिवादन के जो पहले के तरीके हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ये इतने अच्छे तरीके हैं कि दूर से हम अभिवादन कर देते हैं, सामने वाले की इज्जत भी हो गई और हम बीमारी से भी बच गए। शायद हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोचकर ही ये सोचा होगा, ये बनाया होगा। जरूरत है कि हम इस चीज को फिर से अडॉप्ट करें। जब दूसरे कंट्रीज इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम वेस्टर्नाइज एटलीस्ट इस समय ना हो। बात बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की कर रहे हैं, शादी ब्याह भोग, जो इस तरह की सेरेमनीज हैं, इस समय में अगर हम रखते हैं तो हम सामाजिक दूरी का पालन करें। एक कोविड के अंदर मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि कोविड के दौरान बहुत सिंपल शादियां होने लग गई। एक शादियां में देखता था कि हजार हजार, दो दो हजार लोगों को बुला के बहुत बड़ी बिग फैट पंजाबी वेडिंग्स होती थी। अगर भाई शादी कोई टिकनी है तो सिंपल वेडिंग भी टिक जानी है, अगर नहीं टिकनी तो 2000 बंदे आके इतने सारे गवाह इकट्ठे करके कोई शादी टिकने की कोई गारंटी नहीं हो जाती। इस लॉकडाउन में पिछले एक साल में बहुत सिंपल वेडिंग्स मैंने देखी, 20 बंदों के साथ हुई शादियां देखी, बहुत कामयाब वेडिंग्स हुई हैं, बहुत अच्छी वेडिंग्स हुई हैं। और ये हमारी संस्कृति में ऐसी ही शादियां होती थी, बिल्कुल सिंपल। ये जो हम भेड़ चाल में आके हम दिखावे वाले उसमें आ गए हैं, इससे जरूरत है, वैसे भी कोरोना को छोड़ दें, वैसे भी इस चीज से हटने की जरूरत है। कोरोना ने हमें ये चीज सिखाई। अगर इस समय में हम शादी कर रहे हैं, कोई भी बहुत सिंपल से, आजकल मैंने भोग भी देखे पिछले एक साल में, नहीं हमारे समाज में शादियों जैसे भोग, शादी से भी बड़े भोग होने लग गए थे, इतने व्यंजनों के साथ, इतने बड़े दिखावे के साथ भोग होने लग गए थे। अब सिंपल भोग देखे जिसके अंदर लोग सच्चे मन से, परिवार के जो रियल फैमिली मेंबर्स थे और जो क्लोज एसोसिएट्स थे, सिर्फ वो बैठ के प्रार्थना कर रहे होते थे, जो रियल में जो भोग का जो पर्पस था। आज के समाज में अगर हम शादी करते हैं तो जरूरी है कि हम बिल्कुल लिमिटेड गैदरिंग हो और जहां भी हो सके डिस्टेंस मेंटेन हो, सैनिटाइजर हो, मास्क का प्रॉपर बंदोबस्त हो, ताकि एटलीस्ट जिन चीजों से ये बीमारी फैलती है, हमें पता है कि इन चीजों से फैलती है, उन चीजों से हम बचा सकें दूसरों लोगों को। एक थोड़ी सी मेरे मन में एक चीज पिछले कुछ दिनों से आ रही है कि जो अप्रोच नॉट ओनली इंडिया, जो सारे कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं कि एल्डरली को पहले वैक्सीनेट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को छोड़ा जा रहा है कि हम बाद में करेंगे। मुझे लग रहा है, हम मेरे और भी कोलीग्स को लग रहा है कि क्या ये सही अप्रोच है। आज मैं चाहूंगा कि मैं ये वाला पॉइंट आप सबसे डिस्कस करूं, ताकि एक ओपिनियन हम लोग एक बिल्डअप कर सके, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पे हो सके कि जो ओल्ड एज हैं ये तो अपने घरों में बैठे हैं, इनसे बीमारी कैसे फैलेगी, और मॉर्टेलिटी जो है इनको, अगर हम कहें कि इनको मॉर्टेलिटी से हम बचा रहे हैं, उससे ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ के साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमने इस बीमारी का फैलाव रोकना है। बीमारी किससे फैल रही है? यूथ से फैल रही है, यंग लोगों से फैल रही है,
टीचर से फैल रही है, स्टूडेंट से फैल रही है, हम लोग जो मार्केट में जा रहे हैं हम सब लोगों से फैल रही है, जो ऑफिस में जा रहे हैं। तो वी आर द रियल सोर्सेज ऑफ स्प्रेड। जो यूथ है, जो 20s में है, 30s में है, 40s में है, दे आर द रियल सोर्सेज ऑफ स्प्रेड। एक जरूरत है कि सरकारें इस चीज को सोचें कि अगर हम यूथ को शुरू कर दें तो सारी की सारी सोसाइटी की प्रोटेक्शन हो जाएगी। और डॉक्टर शर्मा सर जो अभी बात कर रहे थे हर्ड इम्यूनिटी की भी दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। जो हम वैक्सीन के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है। हॉस्पिटल्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जितनी वैक्सीनेशन का पोटेंशियल है उसका 40% भी नहीं यूज हो रहा। अगर हम टारगेट कर लगा रहे हैं कि 1000 लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है तो हार्डली 400-500 लोग टर्न अप हो रहे हैं। तो अगर इस मौके इफ वी ओपन इट फॉर ऑल, at least we will be able to vaccinate the society in a faster way और जो स्प्रेड है उसको रोका जा सकेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो लीडर्स हैं जो इस बात को पहुंचा सकते हैं, अपने सर्कल्स में बात कर सकते हैं कि इस बात को प्लीज डिस्कस करें, सोचें, अपने सुझाव भेजें। Young people are also at risk for severe sickness, hospitalization, death from COVID-19। यंग लोग भी इसमें इस बीमारी के उतने ही इससे दरपेश हैं, इतने ही बीमार हो रहे हैं और उतने ही लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ रही है। और बहुत सी यंग डेथ्स भी मैं कोविड से देख रहा हूं। हमें इस चीज को थोड़ा सा फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। प्रिकॉशंस तो हम देख रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है। यूथ ड्यूरिंग लॉकडाउन एक मौका है यूथ के पास कि लॉकडाउन पहले वाले से हम ऑलमोस्ट निकल आए हैं, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन लगने के कुछ कुछ चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। इस जब हमने बात की सिंपल वेडिंग्स की, सिंपल भोग सेरेमनीज की, सिंपल फंक्शंस की, तो एक बात ये भी करें कि जो स्पून फीडिंग मोड था एजुकेशन का या ऑफिस वर्किंग का, ये मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर यूथ बहुत अच्छे से उभर के आया है। पहले क्या था कि अगर टीचर्स पढ़ाते थे तब स्टूडेंट्स पढ़ते थे, अगर ऑफिस में बॉस डंडा करते थे, अगर वो कहते थे कि ये काम करना है तब तक करना है, तभी काम होता था, वरना नहीं होता था। पर हमारी यूथ ने वर्ल्ड ओवर ये चीज पिछले 1 साल के लॉकडाउन में इतने अच्छे से करके दिखाया है वर्क फ्रॉम होम में कि अगर कोई सर पे नहीं बैठा होगा तो भी यूथ ने बहुत अच्छा काम किया है। एकेडमिक्स में भी, ऑफिसेज में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी, इन एवरी फील्ड हम स्पून फीडिंग मोड से बाहर आ गए हैं। जरूरत है इसको एक अच्छे तरीके से, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेके जाने की, क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन और चले, हो सकता है पार्शियल लॉकडाउन चले। तो जरूरत है कि हम अपने आप को गियर अप कर लें। वी शुड फासन आवर बेल्ट, सीट बेल्ट, और हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि हम इसमें अपने आप को इस मोड से आगे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो सारी एज में, सारी लाइफ में हमें काम आएगा। Now you have to switch yourself to self-monitoring and self-motivating role. That is the need of the hour. Nobody is watching you, but you are your own teacher, boss. If you pass this exam, believe me, there will be no looking back, and this COVID lockdown will make you self-sustained, independent, and self-reliant for life. जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इसके साथ हम सब भी आत्मनिर्भर भारतीय हो जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे सर पे कोई बैठा है या नहीं बैठा। एक कोविड की प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, तो WHO की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली, आज का जो थीम है उसके अकॉर्डिंगली भी, टू बी अ बेटर इन्फॉर्म्ड एंड अ हेल्थियर वर्ल्ड, हमें ऑक्सीमीटर डिवाइस को हर घर में रखने की जरूरत है। जैसे थर्मामीटर रखते हैं उसी तरह से ऑक्सीमीटर डिवाइस, ताकि हम जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, जिनके अंदर सीधा लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको भी हम पहचान सकें। कोविड की रिकवरी के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सांस चढ़ने की
कंप्लेंट करते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर नहीं होता, उन सबको हम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप अपने लंग फंक्शन टेस्ट करवाइए, अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्रॉपर वर्कआउट कीजिए, ताकि इसकी कैपेसिटी नॉर्मल हो और आप जल्दी बीमार ना हो। हमें वही बात पहले वाली आ गई कि हमें ये चीजें अवॉइड करनी है टू प्रिवेंट द स्प्रेड। हाँ, कोविड जो है, ये जब लास्ट ईयर बात थी तो ये बात हो रही थी कि कोविड 2 महीने रुकेगा, 3 महीने रुकेगा, शायद गर्मी आएगी तब मर जाएगा, शायद बारिश आएगी उसमें तो पक्का ही नहीं रह पाएगा, सर्दी तो पक्का ही नहीं फेस कर पाएगा कोविड। बट हियर वी आर एग्जैक्टली 1 hour बियॉन्ड दिस एंड वी आर लिविंग एमिड कोविड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम सब ने जैसे कोविड को एक्सेप्ट कर लिया है टू लिव विद कोविड, लेट अस एक्सेप्ट इट एज अ न्यू नॉर्मल। कोविड आज का न्यू नॉर्मल है। हमें ये जो हेल्थ हाइजीन, जो कोविड सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इन्हें अपने जीवन का रेगुलरली एक हिस्सा बना के रखना पड़ेगा। एक लास्ट ईयर हम सब के अंदर एक चीज थी, हम सब लोग प्रे कर रहे थे कि भगवान जी कोविड का वैक्सीन आ जाए, भगवान जी कोविड का वैक्सीन कब आएगा, सारे लोग ये प्रेयर कर रहे थे। अब जब कोविड का वैक्सीन आ गया है तो सारे लोग चूजी हो रखे हैं। मेरे पास दिन में ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 क्वेरीज इस तरह की आती हैं, डॉक्टर साहब कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं, डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इससे कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या इसके बाद हमें कोविड नहीं हो सकता। ये सारी चीजें, फलां बंदे ने वैक्सीन लगवाया फिर भी उसे कोविड हो गया, ये सारी चीजें जो हैं, हमें इन सब से दूर हटने की जरूरत है। हम सोसाइटी में ना भ्रम में खुद रहें, ना ही भ्रम फैलाएं। हमें एक चीज को अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि जो चीज हम भगवान जी से लास्ट ईयर मांग रहे थे वो हमारे बीच में अब है, तो हम आगे बढ़ के अपना वैक्सीन लगवाएं। एक क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग पूछते हैं वो ये कहते हैं कि जब हमें वैक्सीन लग गया उसके बाद कितने दिनों बाद हमें एंटीबॉडी बन जाएगा। तो इसके अंदर मेरा जो आंसर होता है वो ये होता है कि जब आपके दोनों इंजेक्शंस लग गए उसके 15 दिन के बाद आपके अंदर एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में होंगे, तब तक आपने कोविड सेफ्टी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी ही करनी है, इवन उसके बियॉन्ड भी करनी है, ताकि हर्ड इम्यूनिटी जब तक ना हो, जब तक समाज के अंदर 70-80% लोगों के अंदर इसकी इम्यूनिटी नहीं होती, तब तक हमें ये कोविड सेफ्टी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके रखनी है। ये क्वेश्चन आ रहा है कि कोविड वैक्सीन जो है क्या ये एनुअली देना पड़ेगा। हाँ, आज के संदर्भ में लगता है, बिकॉज जो भी इस तरह के वैक्सीन हैं इनको एनुअली देना पड़ता है, तो लगता है कि हाँ ये एनुअली ही देना पड़ेगा। एक मैसेज मैं सोसाइटी को देना चाहूंगा कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो वैक्सीन जो वायरस से अफेक्टेड है हम लोग उससे दूर भागते हैं, जैसे हमने को भूत देख लिया हो। मैंने बोला कि हमें उनसे फिजिकल डिस्टेंस रखना है, बट हमें उन्हें समाज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, हमें उनसे भेदभाव नहीं करना है। कोविड वायरस जब डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वायरस भेदभाव नहीं करता, वो किसी को भी चमट जाता है, तो हमें भी अपने आपस में ह्यूमंस में भेदभाव नहीं करना है। हम लोग आज जिस ऑगस्ट गैदरिंग के सामने मैं बैठा हूं, वी आर द टॉर्च बेयरर्स। आज हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम समाज के अंदर ये मैसेज लेकर जाएं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हम लोग पिछले 1 साल से जी रहे हैं, हम स्ट्रांगली जी रहे हैं, हमें स्ट्रांगली इसको फाइट देनी है, अपने आप को स्ट्रांग करना है और लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। वी कैन फाइट इट टुगेदर। इकट्ठे मिलके कोरोना क्या, हम कोरोना से बड़ी किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। इंडियंस के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, ना इंडिया हारा ना इंडियंस हारे। दिस कोविड-19 टू कैन नॉट डिफीट अस। ये हमें हरा नहीं सकता। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें सकारात्मक रहना है, तभी हम कोविड को फाइट कर सकेंगे, हम सेफ रह सकेंगे। माय मैसेज इज
celebrate World Health Day or not, celebrate Doctors Day or not, give lip sympathy to doctors or not, हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएं या ना मनाएं, डॉक्टर्स डे मनाएं या ना मनाएं, हम डॉक्टर्स के लिए थाली बर्तन खड़काएं या ना खड़काएं, हम दूसरे बुत पॉलिटिशियंस के, हमारे नेताओं के बुत लगाएं या ना लगाएं, फ्री भी सब्सिडीज दें या ना दें, हमारे देश को चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम चाहिए। हमें नए हॉस्पिटल बनाने हैं, पुराने हॉस्पिटल्स को और मजबूत करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। यमराज जी भी इतनी बड़ी मॉर्टेलिटी को देख के ये बहुत अच्छा आया था, मैंने सोचा कि मैं सारे लोगों के साथ ही शेयर करूंगा। यमराज जी अपील कर रहे हैं कि धरतीवासियों हमारा वर्कलोड मत बढ़ाओ, मास्क लगाओ और डिस्टेंसिंग रखो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू अमनदीप जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू सर। आपने संक्षेप में इतनी सारी चीजों को पैक किया कि पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटीज कैसी हैं, शुरू में आईसीयू के बेड्स की क्या सिचुएशन थी, वेंटिलेटर्स की क्या थी, और हम एक अलग तरीके की ओपिनियन बिल्ड कर रहे थे, क्या जरूरत है, वैक्सीनेशन जो है ये सबको ओपन होना चाहिए जी। जो लोग बाहर वर्कर्स हैं, जो जा रहे हैं, जो यूथ हैं, उनको खासकर इसकी जरूरत है, जो घर पर हैं उनको अभी भी आप, क्योंकि वो तो पहले से आइसोलेशन में है, ये भी आपका बड़ा अच्छा सुझाव है। एंड देन ऑक्सीमीटर की डिवाइस की जो आपने बातचीत की थर्मामीटर के अलावा, दैट इज समथिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया नीड स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। द टाइम हैज कम। हेल्थ के साथ साथ वेलनेस भी बहुत आगे आ रही है, हर एक को समझना पड़ेगा कि मैं तो क्योंकि फौज की बैकग्राउंड से हूं, आई कम फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, और मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, अगर आप शरीर से मजबूत हैं लेकिन दिमाग से कमजोर हैं तब भी प्रॉब्लम आएगी, बीमारी आपको जल्दी घेरेगी। आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहना है। मैंने पूरे कोविड के अंदर बच्चों को राशन, खाना, ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इस एज के अंदर। एंड व्हेन यू क्रॉस 70, एवरीबडी हैड बीन टेलिंग मी डोंट गो आउट, डोंट मूव आउट एंड ऑल। आई टोल्ड देम देयर हैज टू बी ए पर्पस ऑफ लाइफ। प्रिकॉशंस लीजिए बट पर्पस भी ढूंढिए, प्रिकॉशन के साथ पर्पस। आप खुद से छुप के बैठ जाएं और अपना सिर्फ बचाव करें और किसी की मदद ना करें, वो भी ठीक नहीं है। आप प्रिकॉशंस लीजिए, प्रिजर्वेटिव्स को लीजिए, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी का एक, डॉक्टर अमनदीप जी अभी 3-4 दिन पहले बहुत बड़ा वेबिनार था वेलनेस का पूरे ग्लोबल फ्रेटर्निटी के लिए, और उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही बहुत अच्छी है। काली मिर्च लीजिए, अजवाइन को गर्म पानी के साथ लीजिए, मुंह में एक बार दिन में लौंग रखिए, रात को सोने से पहले 1 कप दूध हल्दी वाला लीजिए और देसी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। ये सब चीजें भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। और आपने एक बहुत अच्छा बताया लंग्स का और योगा का, आपने अपने पंपिंग का और ये सब चीजों का आपने जो बताया, तो मेरे हिसाब से स्वामी रामदेव जी का जो योगा है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, जो भी चीजें हैं उन सब का इस्तेमाल करें और प्रिकॉशंस लें। केस नहीं बढ़ने चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पंजाब में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ रहे हैं, गुजरात में भी केसेस बढ़ रहे हैं, केरला में भी बहुत इस तरीके की सिचुएशन है। तो हम सबको समझना है, प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। और वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया बहुत अच्छे से, उस चीज को हम लेके चले। let us help the entire society while helping yourself. Preserve yourself, take care of yourself, और पूरी प्रिकॉशंस लीजिएगा। और मेरी तरफ से, हमारे चेंबर की तरफ से, हमारे सभी अधिकारियों की तरफ से, और विश्व भर में जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी तरफ से डॉक्टर अमनदीप अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।